Okay, students. So, as you all have sent me a message regarding your doubts in the homework session, and that was exercise 1.3, question number second, main question number second, and sub question is 3. So, I'm writing that question, exercise 1.3, and out of that, main question number 2, and the sub question is 3. And that is 7 upon 3, 3 upon 2, 5 upon 3, and you have a 1 by 2. Okay, now if you have to solve this question, first I told you always try to write the x. So first attempt is to solve this way, and then try to solve by this way. So first cross multiply these two terms, and then you have to multiply these two terms. That's it. So that means 7 upon 3 you have to multiply by half, minus 3 by 2 you have to multiply by 5 by 3. Now while subtracting, see 7 upon 3 multiply by half, first I multiply these two terms, minus 5 by 3 multiply by 3 by 2, 3 by 2 into 5 by 3, it's okay. A into B or B into B, meaning is same. Now you can multiply numerator with the numerator. So when you multiply 7 ones are 7, 3 twos are 6, 3 5s are 15, 3 2s are 6. Understood? Now the denominators are same, then no worry. So 7 minus 15, and answer is minus 8 upon 6. This part you can further simplify as a minus 4 by 3. So the answer is minus 4 by 3. Okay, I hope so. You all have understood. The master Srikanth has send me the request for solving this question, and then I'll go for sixth question. Okay, so for the sixth question, what I'll do, one thing, I'll simplify the question, and you have to continue the rest part by yourself. So I will not going to solve the entire question. I will going to simplify the equations. So once I will frame the equation, I'll try to write, as you know that by solving a Cramer's rule, we need 3 steps. We're going to solve the equations by 3 steps. So what I'll do, I'll going to solve, or I'll going to write all 3 steps. Rest part you have to do, and comment the answers in the comment section of the video. Okay, remember. So the question is 2x plus 3y is 2. This is the first question, and the second equation is x minus y by 2 is half. Now this is easy. I know you all must be getting a problem over here. So what I'll do now, I'll try to simplify this part. What is the problem over here? In the second equation, what is the main problem? The problem is this 2. This 2 is creating the problem, है ना? ये दो बहुत बड़ा problems कर रहा है. So what I have to do, I have to just remove this 2. So to eliminate this 2, what I'll do, multiplying both side by BS, both side, remember this, both side by 2. You all are aware of this BS and all my shortcuts. Now when you multiply 2, so this is x minus y by 2, which is half into 2. Now remember, while multiplying, you know very well, if there are 2 terms, you need to multiply this 2 with all the 2 terms. If there are 3 terms, you have to take this 2 with all 3 terms, है ना? अभी डैड अगर चॉकलेट लाएंगे तो चॉकलेट सभी को मिलेगा, 2 को मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे भी ये 2 फर्स्ट को भी मिलेगा, यहाँ पे भी 2 सेकंड को भी मिलेगा. अब यहाँ पे ये ऐसे डैड है जिनके 2 बच्चे हैं, तो दोनों को मिलेगा. तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 is equals to half, and this 2 and 2 I can cancel, so I think better to write 1. Okay, now this 2 and 2 will also going to get cancelled. So finally you will get 2x minus y is 1. This is equation number second. I think now the equations have become very easy, and the rest part you all can do. मैं इसमें और थोड़ा आपकी मदद कर देता हूँ, और आपको पता ही है कि मैं कितनी बड़ी मदद कर सकता हूँ आपको. So what I'll do, I'm just taking, this is very nice napkin. This is very nice napkin. So what I can do is, so what I can do is, I'll write all the 3 steps.
Step number 1. As I said you earlier, this is A1, this is B1, and this is your R1. This is A2, this is B2, and this is your R2. What I have said, you to write the D, you have to write the coefficient of X and the coefficient of Y. Remember, tell me, what are the coefficient of X? X coefficient means the number which is along with the X. X के साथ में जो नंबर है ना वो बोलना है आपको, वही तो आपको पता ही है. X के साथ में क्या है 2, तो आपको लिखना है 2. देन y के साथ क्या है 3, देन यू टू राइट विद द 3. रो वाइज लिखनी है आपको 2 3, ये हमने 2 3 लिखे. दैट्स इट. लेट्स कम टू द सेकंड इक्वेशन. व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? 2 and 1. So write down 2, and while writing this also consider the sign also. So if you can see here the sign is minus, here the sign is plus. No need to write the plus, always you have to write with the minus. So -1, so write down the -1, and then you know very well how to solve this, and then the dx. Now अब आपको तो पता है dx की इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखने का है, राइट एंड देन y. राइट मीन्स राइट साइड, राइट साइड टर्म्स. व्हाट आर द राइट हैंड साइड? फर्स्ट इक्वेशन का 2 है, सेकंड का 1 है, तो यू हैव टू राइट 2 एंड देन 1. एंड द y, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर? 3. और इसका y के साथ कौन सा टर्म है? कम ऑन टेल मी. -1. वेरी गुड, -1. नाउ वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 into -1 -2 minus this minus this, so 3 into 1. So this is -2 -3 -5. This is your dx. So we got the value for dx. Similarly the last step is dy. अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 3 स्टेप्स कर लिया तो बस छोटी सी स्टेप है, उतने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क. आपको ये बोलना चाहिए वो भी मत दीजिए, अभी कभी ऑन द स्पॉट बोल देते हैं. क्या है? y. Come on, tell me for the y. Now you have to write the y. y के लिए मैंने आपको बोला x right. x right का मतलब पहले x की कोफिशिएंट लिखनी है. x के साथ कौन सा नंबर है? 2. यहाँ पे x के साथ कौन सा है? 2. सेम है दोनों के पास. And right मतलब right hand side. What is the right hand side here? 2. And what is the right hand side here? 1. This minus this. Multiply this. 2 into 1 minus 2 into 2. 2 ones are 2 minus 2 twos are 22. 2 twos are 22. 4. So final answer is -2. So we got the value for dy as a -2. Okay, बस अब एक चलिए वो भी क्या देना है, इसकी जगह पे मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन दूंगा आपको, याद रखना. So x is dx upon d and the y is dy upon d. ठीक है. dx, what is the value for dx? -5 upon d. What is d? So the d part is here. You have to solve this part. -2. अभी काम करता हूँ मैं इसे ही को सॉल्व करता हूँ. -2 minus of -6, आंसर इज -8. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? -8 dy. What is the dy here? -2 upon -8, आंसर 1/4, and here 5/8. Okay. So this was a equation number, question number I think last question of the exercise. ठीक है, आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए. Okay, now let's start with the today's session. And today's session I am starting with a very important part, which is the third method. एक ही equations को solve करने हैं, but we have a 3 different. I taught you the 2 methods. This is the third method. और ये कोई नया method नहीं है, ये आप सभी लोगों ने पहले भी किया, और ये इसे स्कोरिंग कहते हैं. ये अच्छे से स्कोर कर सकता है आपका, मतलब आपका 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा. आज के लेक्चर से 5 मार्क्स कन्फर्म आपके बोर्ड्स के. And the method is the third method, which is a graphical method. Graphical method यानी उन्हीं 2 इक्वेशंस को ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स क्या आते हैं. जैसे अगर अभी मुझे तो क्वेश्चन याद नहीं है, बट आई थिंक I'll go back to the exercise, that exercise where we had solved few very easy questions. For example, if you remember, we already had done this question. 5x minus 3y is 8 and 3x plus y is 2. ऐसे इक्वेशंस हमें सॉल्व करने, एंड यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. यानी आपके आंसर शीट्स में ग्राफ्स वगैरह दी जाएंगे आपको. जब आपको ग्राफ वगैरह दी जाएगा, ओके, देन ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वी राइट द इक्वेशन 1 एंड देन वी राइट द इक्वेशन 2. The first, what we do,
सिंस द गिवन इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए स्टेप्स को। गिवन इक्वेशन इज 5x माइनस 3y इज 8। हम थोड़ा इस पे ज़्यादा वर्किंग करेंगे क्योंकि ये जो मेथड है ये इजी मेथड है। थोड़ा एक स्टेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो उसके लिए मुझे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। सो 5x माइनस 3y इज 8, ये पहला इक्वेशन है। अब यहाँ से हमेशा हम y की वैल्यू निकालते हैं, याद रखिए हमेशा y की वैल्यू। यहाँ पे y कहाँ है, दिस इज y, सो 8 को उधर ले लीजिए, यानी 5x प्लस 8 जब इस तरफ जाएगा सो माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 3y जब इस तरफ आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। आर यू गेटिंग? अब आप क्या करेंगे, 5x माइनस 8 अपॉन ये 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आया आपको इक्वेशन y। सो वी गॉट द कोफिशिएंट ऑफ y, हमें y की मतलब y की वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है आपको। देखिए थोड़ा एकदम इत्मीनान से, बिकॉज ये आप लोगों ने 9th में किया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। ऐसे यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर x, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे x की 3 वैल्यू अपनी पसंद से रखनी होती है, अपनी पसंद की वैल्यू। तो मैं आपको क्या हिंट देता हूँ, आप जनरली ना जो यहाँ पे जो मल्टीपल डिवीजन होता है ना, उसी के मल्टीपल्स में रखिए। तो आप एक काम करिए, आप पहले 1 रख दीजिए, ठीक है। मतलब वैसे तो कहा जाए तो मैंने आपको इसके मल्टीपल्स कहा, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 रख दिया। 1 रखेंगे, फिर एक बार -1 रख दीजिए, ओके। -1 रख के कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी स्टिल आई सेड यू माइनस, एंड देन कीप इट 2, ठीक है। ये 2 वैल्यूज जब आप 1 रखेंगे यहाँ पे, तो आप बताइए y की वैल्यू क्या आएगी। कम ऑन से when we are putting y is equal to 1, मैं तो ऐसे ही कर दूं, यहाँ पे 1 अगर रख दूं, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 minus 8 minus 3 by 3 minus 1, I can say -1। आपको नहीं समझेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार y is equal to लिख लेते हैं, 5 into 1 minus 8 upon 3। so y is equal to 5 1 जा 5 minus 8 upon 3, so the y is -3 upon 3 -1। so we got the value for y as a -1, ओके यानी -1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट मिला 1, -1, ठीक है। नाउ -1, व्हेन यू गोइंग टू पुट अ -1 हियर, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू -1, सो देयरफॉर सॉरी x इज इक्वल टू -1, सो द y इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट कीजिए वहाँ पे, सो 5 into -1 minus 8 upon 3, ओके। सो 5 into -1 -5 -8 upon 3, दिस इज -13 upon 3। अब इसको अगर आप नोटिस करेंगे, सो दिस इज -4.3, क्योंकि 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 3 4.33333 आता है, सो -4.3, यानी जो कोऑर्डिनेट आएगा वो -1, -4.3 आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट जो है, पुट x इज इक्वल्स टू 2। When you are going to put this 2 over there, जब आप 2 रखेंगे वहाँ पे, okay, let's substitute this 2, so y is equals to 5 into 2 minus 8 upon 3, so the value for y is 2/3। y की वैल्यू मिली आपको 2/3, which is 0.67, which is approximately 0.7, ठीक है। so coordinate is 0.7, तो यानी 2, 0.7, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आए। आई होप सो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा ऐसे नंबर्स, लेकिन ठीक है, आप ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें आ जाते हैं। तो वी गॉट द 3 कोऑर्डिनेट्स। अभी इन्हें प्लॉट करनी है हमें, ये तो हुआ अभी एक, अब ये सेकेंड वाला है, इसका भी हमें ऐसे ही करना है आपको। तो कॉपी कर लो आप इसे, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। नाउ द सेकेंड इक्वेशन, सिंस द सेकेंड इक्वेशन इज 3x plus y is equal to 2, सेकेंड इक्वेशन ये, सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू फॉर y, 2 minus 3x, ये तो इजी हो गया। अब आप क्या करेंगे, टेबल फ्रेम करेंगे यहाँ से, and we will going to write the value for x,
द वैल्यू फॉर y and x comma y. Now while writing the value for x, I'll substitute first 0, फिर एक बार -1 ले लेते, एक बार 1, क्योंकि अपॉन में नहीं है तो कोई भी नंबर आप लेते, छोटा नंबर लेने का हमेशा। जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, करूँ फिर से यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू, बताइए 3 इंटू की जगह पे क्या रखूँ 0, सो 3 इंटू 0 0, सो आंसर इज 2, सो वी गॉट द वैल्यू फॉर y एज ए 2, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 2। अब एक बार -1 रख देंगे यहाँ पे, सो द y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 इज 5, so this is 5, so answer is -1, 5. Then the next is y is equals to 2 minus 3 into 1, so 2 minus 3, answer is -1, so we got the value for y is a -1, 1, -1, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया, पिछले टेबल में भी हमारा 1, -1 आया था और इस टेबल में भी 1, -1 आया, मतलब ये नंबर जो है ना ये दोनों जगह आ रहा है, मतलब यही आने वाला है आंसर। फिर भी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो जैसा कि हमने ये दोनों टेबल से प्लॉट कर दिए, दोनों की टेबल बनाने के बाद हमारा ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ के ऊपर लाइंस प्लॉट करनी है, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर जब आप लाइंस प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरीके की लाइंस प्लॉट करनी है आपको, ठीक है। ये है आपका x और ये है आपका y, ये आपका 0, ठीक है। अब आप देखिए तीनों पॉइंट्स जो है ना, x कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 1, -1, 0, 1, 1, 2, 2 तक गया है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ठीक है। अब लुक एट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1, देखिए ये जो है ना ये अपना पहले वाले का है, देखिए 1, -1। अब यहाँ से 1 देखना है, x पहले x है और फिर y है, सो x पहले लेना है और फिर आपको ये वाली y लेनी है, तो x कितना है 1, तो यहाँ से 1 और यहाँ से -1 समथिंग, ये वाला कोऑर्डिनेट ये दिख रहा है आपको, ये हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, -1, आई थिंक ये शायद ना दिख रहा हो आपको, 1, -1, ये आपको फर्स्ट पॉइंट हुआ। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज -1, -4, 3, देखो दोनों निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, third quadrant, and this is your fourth quadrant. Now the second quadrant is -1, this is -1, and this is 4.3, so this is 3, 4.3 will come up ऐसे करके, so this is 4, so 4.3 I think will come here, -1, -4 is over here, -4.3 is somehow here, तो ये हो जाएगा -1, -4.3, ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज 2, 0.7, दिस इज 2 एंड 0.7 जो होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा 1 है, 7, इसके 10 सेक्शन इसमें ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, तो 7th वाला जो सेक्शन होगा ना उसी के सामने आपको ये ले लेना है, ये हो जाएगा 2, 0.7, ठीक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि this is 2, was it 2? I'm not sure about this. Okay, sure तो नहीं लग रहा है कि वो 2 था कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये -1, -4 ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है दोनों निगेटिव हैं, सो यहाँ पे हम करेंगे, ये -1 है और ये -4, दिस इज -3, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा -4, सो -4, सी -1, ये -1 है और -4.3, मतलब इसके 4 के बाद अगर 3 आएगा तो यहाँ पे आएगा ये, तो ये आएगा आपको थर्ड -1, -4.3, ठीक है ना।
ये। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन पास करेंगे जो तीनों कोऑर्डिनेट से कट करके जाए, कुछ इस तरीके से। और ये जा नहीं रहा है, अब समझिए कि ऐसे करके वो तीनों से पास होके जाए। स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हुआ आपका फर्स्ट लाइन, ठीक है। एंड द फर्स्ट लाइन वाज हैविंग द नेम, जो फर्स्ट लाइन का जो नाम था वो इट वाज, द फर्स्ट लाइन वाज हैविंग ए नेम 5x minus 3y is 8. This was the first one. Now look at the second one. The second one is having the name 3x plus y is equal to 2. So 0,2. See, अब देखिए 0,2 कहाँ आएगा? 0,2 will be on the y coordinate. So this is 0,2 first point. Second is minus 1,4.5. कहाँ है minus 1? Minus 1 is here and 5 इसके ऊपर है. तो y तो 5 तक जा रहा है, तो minus 1 और 5 समथिंग यहाँ पे आएगा. ये -1,5 आया. फिर से देखिए -1,5 यहाँ पे आया, तो ये मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया. सेकेंड, थर्ड इज 1, -1 इज समहाउ सेम पॉइंट. ये पॉइंट को मैं स्टार कर लेता हूँ. ये अब आप इसको अगर पास करेंगे तो कुछ ऐसे करके पास होगा. तो आपको क्या दिख रहा है कि सोल्यूशन का मतलब है कहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इंटरसेक्ट तो वो लोग एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, विच इज़ 1, -1. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन by the graphical method is 1, -1, and this you can recheck yourself by using previous method. आपको उससे भी आंसर 1, -1 से आएगा. अगर आपको आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी वही आता है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को होमवर्क सेशन में पहले एक्सरसाइज, जो सबसे पहला होमवर्क जो था वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग उसे कीजिए. कल हम लोग इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक या दो बार में नहीं होगा. वी विल टेक 2-3 सेशंस, देन ओनली दिस पार्ट विल बी परफेक्ट टू यू. ओके, प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए.